Good morning, my dear respected students. And today again, we are just talking about recursion. And I think so now the things will be clear in context of recursion when we talk about. And what we are supposed to begin with today. I'm just going to start discussing the concept here. What we have discussed yesterday as well. That is, write a program to display a Fibonacci series using recursion. But remember, yesterday we have discussed and we are supposed to do it practically in case of, or we can call it as in context of iterative method. Iterative methods are the method where we are supposed to use a loops in place of using this recursion method where we call function again and again. Okay. So what we are going to do, because this is a practical session and we are supposed to do it practically first, and then we are going to discuss each and everything with the help of a demonstration, graphical demonstration, that how this program is going to be work. अब मेरे बच्चों को इतनी बात समझ आ गई है कि अब हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं. देखिएगा मेरा बच्चा, मैंने लिखा def fact is there और फैक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डाल दिया. अब ये आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि दैट व्हाई वी आर यूजिंग def and why we are writing fact here and why we mention n inside the brackets, because we are expecting some value from the user. मेरे बेटा एक एक करके मैं पूछता जाऊंगा, मुझे गाइड करते जाइएगा. अगर कहीं पे भी फैक्टोरियल ऑफ 0 की बात, फैक्टोरियल ऑफ 1 की बात करूं, अगर फैक्टोरियल, अरे वाह अर्शप्रीत आइए है, क्या बात है. अगर हम बात करें if the value of n is equal to 1, then it returns, क्या रिटर्न करेगा. मैं फैक्टोरियल की बात बीच में करना पड़ा. फिबोनाची सीरीज. So what it makes sense, that when we talk about if n is equal to 1 here, then this is to be return a 0. मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है. अगर n की वैल्यू 1 होगी तो वो 0 रिटर्न करेगा. वो कहता है अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो वो हमें क्या रिटर्न करता है. दे आर सपोज टू रिटर्न अ वैल्यू दैट इज a 1 here, and else here, which says when we talk about else here, they are supposed to return the values in such a way. For example, this is a f which is used for Fibonacci. By mistake I have just pronounced it as a factorial here. This is not a factorial. This is a program which is where we are supposed to discuss a Fibonacci series here, and this is n-1. We are calling it once, and after that plus again we called it as f and n-2 here. Why we do that thing is supposed to be cleared right now within 5 minutes. And after that we are expecting a value from the user here, and for the same what we are going to mention input, enter the value of n is equal to, and here it is for I in a range. Here it is a range. Very good. ये थोड़ा सा मेरे कीबोर्ड का कमाल है. Range. This is it begins from a 1 and it moves towards n+1 here. And right now what they are going to do, they are just going to print that particular and call the function for a Fibonacci series here. And for displaying the content in a same line, we can just simply mention it like this. And this is the actual program. एक बार पहले रन करके देख लें, फिर विचार करते हैं. That then we are going to discuss that how it works and what is the purpose of this particular program. F5, okay. And now I'm just going to mention. अब ये देखो, मैं हर एक प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ रिकर्शन के साथ ही. उसका कारण क्या है? When I just want to make a practical file, in that case, it's very easy for me to make a practical file. We are just take it as take the printout or take a screenshot of a output of that program along with the code, and then we are going to make a program file. So here we can talk about that. We take it as 5 here, or what it says. It says that this is here it is. Okay, no problem. When we are going to hit it again, yes, it's happening here. Okay. मेरा प्यारा बच्चा, एक बार जरा जिनको मैं बोलता जाऊंगा वो कृपया करके अपने आप को अनम्यूट करते जाएगा. अर्शप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग. मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि आज पीरियड नहीं था और आप आ गए. थैंक यू वेरी मच.
I am expecting that you are supposed to join the class all the times. Thank you very much for your cooperation. Khushi Kheti ji, can you please explain once that what is the working of this particular code? ये जो मैंने select किया है अभी screen पे, कृपया करके बता दीजिए. सर जब n की वैल्यू 1 होगी तो वो रिटर्न 0 करेगा. अरे वाह, क्या बात है. और गुरप्रीत जी ये बता दीजिए, ये अगला क्या कह रहा है, ये अगले की भी बात बता दीजिए थोड़ी सी. गुरप्रीत को मेरी आवाज आ रही है? जय, मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हाँ जय, ये सिलेक्ट जो मैंने किया है उसके बारे में बता दे क्या है. सर अगर n की वैल्यू 2 होगी तो वो रिटर्न 1 करेगा. वो रिटर्न 1 करेगा. इसका कारण क्या है कि अगर अब हम किसकी बात कर रहे हैं जी, हम फिबोनाची सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें पहली वैल्यू 0, फिर 1, फिर सम ऑफ टू नंबर्स. अब फिर दोबारा फिर क्या किया, 1 + 1 that should be 2 here, and then it says yes I am 2 + 1 that should be considered as a 3 here. This is the actual meaning of that particular, that the previous sum of previous two numbers is supposed to be displayed. That is the concept of a Fibonacci series here. Okay, so how we can discuss the next thing here? Kindly just concentrate on the practical demonstration what we are supposed to discuss here on the screen as well. The program is there only. This is the program only. Okay, this is the actual program what we have done in a practical session for making it clear that whether it's work or not. And this will be the desired output as we can do it in a practical session as well. But kindly concentrate. मैं बेटा आपसे request कर रहा हूँ that what is the purpose and how this program is going to be work. Kindly concentrate. It's my humble request. ये बनाने में मुझे कम से कम बहुत time लग गया, but मैंने ये बनाना इसलिए बनाया है कि आप लोगों को सबको clear हो that how it works. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज. एक इटरेशन मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं 1 by 1 आपको बुलाऊंगा और आप साथ के साथ मेरे पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द वैल्यू ऑफ n is equal to 5. आई एम जस्ट टेकिंग दैट एग्जांपल ओनली एंड आफ्टर दैट व्हाट इट मेक सेंस. मेरे बेटा मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो. व्हाट वी टेक नाउ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, दिस इज द कांसेप्ट हियर एंड this is a I here, and it says this I is supposed to be considered as a 1. Why so? Because we have mentioned here 1 and n plus 1 means 6 here, but it reads towards a 5 here. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so first time what happened here, they says I is equal to 1. Okay, after that here it is n is supposed to be received the value here, and that particular value is 1 here. मेरे बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. n is storing a value that is a 1 here, and after that what happened, this is if n is equal to 1, and our context right now the value of n is equal to 1 here, it says that this is a true condition, and what they are going to display, they are supposed to display the value, my dear respected students, that is a 0. ये मेरे बेटा ऊपर देखते जाना, ये आउटपुट आपके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपको स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रहा है. मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? जिनको मेरी बात समझ आ रही है वो हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. जिन लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मुझे एक बार पता लग जाए कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ भी रही है या नहीं आ रही. Very good, very good, very good, very good. Thank you for your cooperation. Okay, अब मैं नेक्स्ट बच्चे का नाम ले रहा हूं. संजना विरदी, अनम्यूट करिए प्लीज. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. यस सर. हाँ संजना, अभी जो हमने पहली बार इटरेशन चलाया आई की वैल्यू 1 थी, अब दूसरी बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 2. वो स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज. It's my humble request, kindly concentrate on screen as well. It says I is equal to 2. मेरा बेटा अब जो ऊपर फंक्शन है f ब्रैकेट के अंदर n है, वहां पे n के अंदर क्या स्टोर हो गया मेरे बच्चे? 2. वेरी गुड. और अब मेरी if की कंडीशन लिखा हुआ है if n is equal to 1. ये वाली कंडीशन चलेगी मेरा बेटा के L if चलेगा. सर L if. वेरी गुड. वो कहता है n is equal to 2 here. This is that n is equal to 2 here, and what they are going to return here in this output, it says yes, this time they are supposed to return the value. संजना जी बोलिए क्या वैल्यू रिटर्न किया उसने? 1.
अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच संजना, गॉड ब्लेस यू। यहां तक संजना को क्लियर है। ओके, कैन आई टेक नुपुर, आज मेरी आवाज आ रही होगी, आप भी बोल सकते हैं। मेरे को लगता है कि आप कल शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए ड्यू टू सम इश्यूज। माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू नुपुर जी? यस सर, सर पर क्रैक कर रही है नेट की वजह से। नेट अच्छा बेटा, और तो नहीं, खुशी मेरी आवाज क्रैक तो नहीं कर रही है आपको? सर मेरी साइड नहीं कर रही। हाँ, वो मेरे बच्चे की तरफ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। नुपुर, फिर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आपके लिए, आप थोड़ा सा सुनिए अभी, फिर हम बात करते हैं। खुशी, मेरा पुत्र आएगा, नेक्स्ट इटरेशन के लिए आएगा? जी सर। ठीक जी है। सर। मेरी बच्चा मुझे बताए अब आई की वैल्यू क्या होगी मेरा पुत्र? 3। अरे वाह, स्माइल के साथ बोला गया, जरा ऐसे गुस्से में मत बोला, डर लगता है भाई। आई इज इक्वल टू 3। अब मेरी बेटी मुझे बताए कि अब आई इज इक्वल टू 3 हो गया, और जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो अब एन के पास क्या आ गया मेरा पुत्र? 3 आ गई। 3 आ गया, स्क्रीन पे नजर आ रहा है मेरी बेटी को। अब ये जी कहता सर। है कि अगली बात हुई क्या। अब ये देखो मेरे बच्चों, अब ये ना तो ये इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, ना ये एलएफ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। अब ये कहां पे आ गया मेरा पुत्र? सीधा आ गया एल्स के पास आ गया। मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। अब देख जरा खुशी क्या कह रहा है। ये मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सर एन की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे इन दोनों चीजों को वॉच करिएगा प्लीज ध्यान से, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। इट सेज दैट f3 minus 1 plus f3 minus 2, अगर 3 minus 1 की बात करूं तो खुशी क्या आ रहा है मेरा पुत्र? 2 आ रहा है। और 3 minus 2 की बात करूं तो मेरा क्या आ रहा है मेरा बच्चा? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। अगर f2 को कॉल करूं, मतलब अगर मैं n की वैल्यू में 2 पास करूं तो मेरा पुत्र मुझे क्या रिटर्न होता है? 1 रिटर्न। और अगर f1 को कॉल करूं तो मेरा पुत्र क्या रिटर्न होता है? 0। अगर मेरी बेटी इन दोनों को प्लस कर देगी तो मेरी बेटी को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अरे वाह, और ऊपर अब जरा देख आउटपुट में क्या आ गया? 0 1 एंड 1। वेरी गुड, थैंक यू खुशी जी फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। ओके, अब मैं नेक्स्ट को बुला रहा हूं। जय पुत्र आएगा? जय? यस सर। वेरी गुड। अब जय मुझे बता, मेरी बेटी ने पहले, खुशी ने मुझे बताया कि i इज इक्वल टू 3 हो गया। अब मेरा पुत्र ये दोबारा कॉल करेगा अपने आप को, अब क्या होगा i की वैल्यू मेरा बच्चा? सर 4। अरे वाह, कॉन्फिडेंस के साथ बोल, मजा आ रहा है। उसके बाद अब i की वैल्यू व्हेन इट इज गोस टू n हियर, नाउ द वैल्यू फॉर n इज टू बी कंसीडर एज अ 4। वेरी गुड। अब मेरी बेटी जो इफ है, एल इफ है, क्या ये वर्क करेगा या सीधा डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा? सर डायरेक्टली एल्स में मेरी जाएगा। बेटी ने बिल्कुल ठीक बोला। अब मेरी बेटी जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब कंवलजीत सर ने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया, मेरी बच्चे ने मुझे बोला i इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। अब ये देख मेरा बेटा क्या कर रहा है, स्क्रीन पे क्या आया? इफ f 4 minus 1, 4 minus 1 कितना होता है मेरा पुत्र? 3। और अपोजिट जो उसके टर्म आगे लिखी हुई है 4 minus 2, वो उसका क्या आएगा मेरा बच्चा? 2। वेरी गुड। अब ये देख हमारे पास आ गया स्क्रीन पे f3 f2। अब क्या होगा व्हेन वी टेक इट एज f, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये देखना जरा, ये स्क्रीन पे f2 की बात करूं तो जैसे ही ये 2 पास करेगा n के अंदर, तो ये क्लियर है बिल्कुल कि यहां से ये क्या रिटर्न करेगा? दैट इट्स रिटर्न्स अ वैल्यू दैट इज 1 हियर। तो 1 यहाँ पे मेरे बच्चों को नजर आ गया, यहाँ पे मेरे बच्चों को नजर आ गया 1। अब ये क्या करता है, व्हेन वी टॉक अबाउट f is 3 here, what they do, again they call that particular and it says 3 minus 1 plus f3 minus 2. So what happened here, मेरा बेटा क्या होगा? f3 minus 1 is 2, f3 minus 2 is 1 here. And again what they do, when they call a Fibonacci of 2 here, they pass 1, and when they call f1 they pass 0, and here it is 1 plus 0 is 1, and the last is that this one is supposed to be added with this one, and it says 1 plus 1 is to be considered as a 2 here. और जैसे ही मैंने देखा, वो देखो मेरा बच्चा आउटपुट के अंदर मुझे वैल्यू मिल गई, दैट इज टू बी कंसीडर एज अ 2। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहां तक समझ आ रही है, वो मेरा बच्चा एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दे। वेरी गुड, फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी, अब कंवलजीत सर आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। एक और अपने साथी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरा साथी मेरी आवाज को सुन रहा हो तो।
मैं ऐसे करता हूँ, गुरनूर तो मेरे साथ बोलता नहीं है, अगर बोलेगा गुरनूर तो गुरनूर आ जाए, अगर गुरनूर नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, फिर हम कॉल करते हैं। नुपुर तेरे को बुलाता हूँ, एक बार ट्राई करके देखना अगर मेरी आवाज अब आ रही है क्लियर। यस सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है, वेदर की वजह से वो फिर वाईफाई की रेंज की प्रॉब्लम। हाँ 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 हाँ, तो करेंगे पार्टिसिपेट आपके, मैं किसी और को बोलूं बेटा? यस सर। चलिए बोलिए, मेरा बच्चा, मेरा बेटा बोलेगा अब। चल नुपुर मुझे बोल, अब आई की वैल्यू क्या होगी मेरा पुत्र? सर 6। अरे नहीं हो मेरे साथी, अभी तो आई की वैल्यू स्क्रीन पे 5 4 नजर आ रही है ना, 5 होगी। ठीक है, 5। अब मेरा पुत्र जब आई की वैल्यू 5 होगी तो मेरे बेटे ने एन के अंदर क्या पास कर दिया? 5। वेरी गुड। अब मेरा पुत्र जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखना, स्क्रीन पे ध्यान से देखना, एक सेकंड मैं जरा ये सारा जो है ट्रबल सी आ रही है इसको हटा दूं। ठीक है, अब क्लियर हो गया स्क्रीन। ठीक है, अब मेरा पुत्र जरा ध्यान से देख, जब 5 पास हुआ, इन दैट केस 5 माइनस 1 कितना होता है मेरा बेटा? 4। वेरी गुड। और 5 माइनस 2 कितना होता है मेरा पुत्र? 3। वेरी गुड। अब जरा देखिएगा जरा ध्यान से, अब 5 4 को कॉल करेगा तो क्या आएगा? अब इधर ध्यान से देखिए, अब मैंने दोबारा 4 को कॉल किया, इधर देखिए प्लीज ध्यान से, इस जगह देखिएगा और यहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा हाउ इट वर्क्स। It says again they call, they pass the value of n is equal to 4, 4 minus 1, 4 minus 2, and here itself it again call that particular function 3 minus 1 and 3 minus 2. What happened next is, when we talk about the next thing here, it says, my dear respected students, again they pass f is 3 and f is 2, f is 2 and f is 1. So what happened here, when we talk about this f of 2 here, that it returns a value 1, f of 2 is returning a value 1 and f of 1 is returning a value 0. मेरे पुत्र को मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। वेरी गुड। अब मुझे नुपुर ये बता दे, अगर मैं ये f3 रह गया मेरा, अब ये जब 3 वैल्यू पास होगी तो किसको किसको कॉल करेगा पुत्र? ये सर 2 and 1। 2 and 1। मेरे बेटे ने यहाँ पे बोला मुझे कि सर ये इस तरीके से आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ किया 2 and 1, और जब ये इसने 2 को कॉल किया, क्या रिटर्न किया नुपुर बच्चे मेरे को? 1। और मेरा बेटा जब 1 को कॉल किया तो क्या रिटर्न किया पुत्र? 0। 0। मेरी बेटी कहती है 1 plus 0, और जैसे ही हमने यहाँ देखा 1 plus 0 is 1 here, और अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ये चीज जो 1 यहाँ पे आ रही है और एक 1 जो यहाँ पे आ रहा है, it says 1 plus 1, then it is to be considered as a 2. So sorry, this one is 1 plus 1 is to be considered as 2, and here it is plus 1 is, this is to be considered as a 3 here. And my dear respected students, now the output will be 0, 1, 2 and 3. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आ गई, नुपुर आ गया पुत्र, समझ आ गया? यस सर। दे रहो मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और जितने मेरे साथियों को मेरी बात समझ आ गई, हैंड रेज कर दीजिएगा। वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। मतलब मेरी ये मोटिव है, इट्स माय मोटिव दैट I am supposed to explain the concept in such a way that it is easy to understand. I think so that this way helps you to understand this concept, and even if you are facing any kind of problem here, then you can just check it on your official YouTube channels, your school's official YouTube channel. Okay ji, Gurpreet ji, you want to ask anything, or otherwise you are raising your hand? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूं। मेरे बच्चों को यहां तक सारा कुछ क्लियर हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल, जितने हमने सब कर लिए वो सारा हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, वन वी आर सपोज्ड टू डिस्कस वन मोर थिंग हियर टुडे in this session, and that particular, अच्छा उससे पहले ना, this is alternate program that you can do the Fibonacci series in a recursive method. This is the alternate way to do that particular thing. You can do it in such a way also. It's up to you. You can try any of the way, no issues with that. मेरे बच्चों, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, आपको आउटपुट ये बिल्कुल डिजायर्ड देगा जो आपको आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, एंड इफ यू वांट टू ट्राई दिस वन, यू कैन ट्राई practically as well. Okay,
So next important thing we are talking about, and somewhere in our syllabus this is not mentioned. I just want to point out this thing, that in our syllabus this is not there, but I think so that this is the concept is important here, important in context of your future approach as well, not only the context of syllabus here, but in your future endeavor when you are going to join the higher classes. In that case, this binary search is supposed to help you. So we can we are supposed to discuss that content here, because this is also mentioned in your book as well. So okay, kindly concentrate, it's very important and very easy to understand. मेरा बेटा इतना आसान है सीखने के लिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना easy. Okay, first of all, I just begin with a definition part. It says a binary search is also known as a half interval search. Why we called it as a half interval? Because in that context, we take the values in the form of list here, and we are supposed to divide that list into two different parts. For the same, we can find the mid value, and all the time we are supposed to search the desired value in the middle location. अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि पूरी की पूरी लिस्ट को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, और जो भाग हम विभाजन के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज अ मिड पॉइंट, जो हमारा चिन्ह बिंदु रहेगा, जो मध्य भाग रहेगा या मध्य नंबर रहेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू सर्च करनी है वो मिड पोजीशन पे मिल जाएगी. ओके, they search for position of a target value with a sorted array. This is very important. I just want to point out this thing, that this binary search is actually works on a sorted array or a sorted list here. So if you are entering some values which is not in a sorted order, so you can try some way out by which you can sort it out first of all, and then we are supposed to perform the binary search. Then they are going to show their impact. Okay, after that, binary search compares the target value to the middle element. This is very important again. So this is the middle element where we get our desired result of the array. Okay, prerequisites of binary search here, जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, that what we required. First point says the given array or sequence must be sorted. मेरे बच्चों इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा and store this thing in your brain as well, that when we talk about the context of binary search, they says that we are supposed to work, that this binary search is working on a sorted values. Second thing it says, its sort order and size must be known. Sort order, in context of sort order, we just take it as A to Z here. We can call it as ascending here, and we can also call it as like this Z to A. We can also call it as Z to A, which is to be called as a descending order. And size must be known, that the list, the size of your list is known in advance. So this is the criteria that with the help of that we can do it in a very efficient manner. Okay, अगर मैं यहाँ तक एक बच्चे को किसी को भी बोलूं बताने के लिए, तो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरे बच्चों को मेरी बात समझ यहाँ तक आई कि नहीं. ओके, गुरनूर का दोबारा नाम ले रहा हूं पर वो नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम एट दैट. गुरप्रीत जी एक बार थोड़ा सा गाइड कर दीजिए. अभी ये स्लाइड जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, इसमें हमने क्या विचार किया है, क्या डिस्कशन किया है मेरा उत्तर? सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही सर क्लियर से. मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, नो प्रॉब्लम. जय, मेरी आवाज क्लियर आ रही थी आपको? यस सर. मेरे को आवाज क्लियर. आज मुझे लग रहा है ना ये वेदर के कारण कुछ लोगों के सिस्टम्स में, मतलब जो नेट है उसमें कुछ इश्यू है. जय, मैंने ये जो समझाया थोड़ा सा इलैबोरेट कर देंगे एक बार आप? यस. हाँ बोलिए प्लीज. सर बाइनरी फाइल को हाफ इंटरवल सर्च भी कहते हैं. बिल्कुल ठीक है. तो जो वैल्यू इसमें एंटर करनी होती है वो सॉर्टेड एरे में होनी चाहिए. क्या बात है, ठीक है. जो बाइनरी सर्च है वो टारगेट करती है वैल्यू को मिडिल एलिमेंट पे. अरे वाह, क्या बात है. इसका मतलब मेरी बेटी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रही है. वेरी गुड. अब मेरे बच्चे को इतनी बात समझ आ गई है मेरी. गुरप्रीत, अब ये जय ने जो बोला वो सुनाई दिया था आपको बेटा? यस सर, बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुई. हाँ कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरा पुत्र, मेरी बात सुन रहा है, बस इतना ही बहुत है. ठीक है, थैंक यू. खुशी एक बार अनम्यूट करके बताइए, ये स्लाइड क्लियर है आपको? इट्स ओके.
जी सर। थैंक यू वेरी मच खुशी जी। मेरा बच्चा, आई एम अगेन रिपीटिंग हियर, खुशी ने मुझे एक मैसेज किया था, सबको बता रहा हूँ। खुशी ने एक मैसेज किया कि सर वो जो आपने पार्टिसिपेशन के लिए डाला था ना, वो हमने पार्टिसिपेशन के लिए हमने कर लिया रजिस्टर और हम पार्टिसिपेट करेंगे। सो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, नो इश्यूज दैट वेदर यू हैविंग अ मोर टाइम और अ लेस टाइम, बट पार्टिसिपेशन इज वेरी मैंडेटरी, सो यू कैन पार्टिसिपेट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, बाइनरी सर्च इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, आप जरा ध्यान से सुनना, और जिनको मेरी आवाज जैसे ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, अगर किसी को आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो स्क्रीन को जरूर ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट सेज फाइंड आउट द मिडल एलिमेंट इन द सॉर्टेड लिस्ट। मैंने पहले भी बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सर्च अ पर्टिकुलर वैल्यू, ऑल द टाइम दैट दिस वैल्यू इज सपोज्ड टू बी अवेलेबल इन अ मिडल लोकेशन ओनली, मतलब कि मिडल से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिल सकता। सेकंड, कंपेयर वैल्यू विद मिडल एलिमेंट। बिल्कुल ठीक है, जो यूजर डालेगा कि मेरे को भैया ये वाला नंबर चाहिए, in that case that number is supposed to be compared with the middle element, and if they return that yes this is the value, then they are supposed to display that value is found, which is displayed in the third point here. If value matches with the middle element, print message value is found, okay, and then stop. So fourth point says else if value is greater than the middle element। मेरे बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ये एक की पॉइंट है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन होती है किससे, मिडल एलिमेंट से, देन वैल्यू इज सर्च इन द राइट सबसेट, राइट सब लिस्ट, स्टार्ट विद स्टेप 1। आप बोलेंगे सर माफी चाहते हैं कि आपकी इस बात को ना थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं, अभी समझा देता हूं, चिंता मत करिए, थ्योरी एक बार खत्म होने दीजिए। फिफ्थ पॉइंट सेज एल्स इफ value is smaller than the middle element, then value is searched in left sublist, start with step 1। बिल्कुल ठीक। और अगर ये हमें किसी भी जगह पे नहीं मिल रही, in that case else print value not found। यहां तक मेरे बच्चों को मैंने कोशिश की थ्योरी समझाने की, पर मुझे लगता है कि in case we talk about a practical subject, so theory is not very much justified the concept. So what we are going to do, we are just going to elaborate this with the help of graphical representation, and then we can do it in a practical scenario. Okay, this is the values, these are the values। okay, मेरे बच्चों अब ये बताइए मुझे, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं वैल्यूज और इसके इंडेक्स भी नजर आ रहे हैं। जस्ट टेल मी वन थिंग, दैट दीज वैल्यूज आर इन अ सॉर्टेड ऑर्डर और अनसॉर्टेड ऑर्डर। एक बार मुझे कोई भी अनम्यूट करके एक बार बता दीजिएगा कि ये वैल्यूज आपको सॉर्टेड ऑर्डर में नजर आ रही हैं कि अनसॉर्टेड ऑर्डर में नजर आ रही हैं? सर अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड आ रही है, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे बच्चों ने मुझे बोला अनसॉर्टेड, तो मैं सेकंड चीज पूछूंगा, बाइनरी सर्च वर्क ऑन अनसॉर्टेड वैल्यूज एज वेल, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। सो व्हाट वी कैन डू हियर, काइंडली कंसंट्रेट, आई एम जस्ट गोइंग टू कंसीडर दीज टू थिंग्स। सबसे पहले ध्यान से देख लेना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों एंड्स को नाम दे रहा हूं, दोनों एंड को नाम दे रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ये जो पहली वैल्यू है इसको हम लो ले लेते हैं, एक वेरिएबल, और जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे वैल्यू नजर आ रही है उसको हम क्या ले लेते हैं, दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज अ हाई। दीज आर द नेम ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स। मेरा बेटा ये मैं क्यों ले रहा हूं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिड हियर, सो इन दैट केस वी टेक टू वेरिएबल्स, वन इज लो एंड सेकंड इज अ हाई। Okay, and after that what we are going to do, because this is not a sorted elements, in that case what we are going to do, we just convert it into a sorted list। sorted list के अंदर मैंने convert कर लिया। अब मेरे बच्चों को नजर आ रहा होगा कि ये sorted form में आपको नजर आ रहे हैं। now what happened here, this is a low and this is a high। एक बार मेरे को जय अनम्यूट करके बता दे, जय लो की वैल्यू बताना, इंडेक्स की क्या है सर 0। और हाई की इंडेक्स वैल्यू बताना 5। 0 + 5 करना, 0 + 5 5। 5 डिवाइडेड बाय 2 करना, 5 डिवाइडेड बाय 2 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 का आधा 2.5। 2.5। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन यूज कर लेता, अगर मैं फ्लोर डिवीजन यूज कर लेता फिर 2.5 ही आना था कि 3 आना था कि 2 आना था?
खुशी Sir, अगर two. हाँ खुशी बोली ना, ठीक है जी ठीक सर। है। अब देखना, अब जरा देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नीचे देखिए। What we are going to find, we are just going to find it as a value that is a 17. मैंने यूजर से पूछा, मैंने कहा भाई कौन सी वैल्यू सर्च करना चाहते हो, कहता that I want to search a value that is a 17, 1717। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना what happening here। Step 1 मेरे बच्चों वहां पे मेंशन हुआ लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू 5। अब मिड मैंने फाइंड किया, एक वेरिएबल और ले लिया, उसको नाम दे दिया मिड। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा 0 + 5 एंड देन फ्लोर डिवीजन 2, तो मेरे पास मिड की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। मेरे बच्चों को मेरी बात यहां तक समझ आ रही है। अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज द मिड वैल्यू। मेरे बच्चों ये मिड वैल्यू है आपकी। अब जरा कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए। सेकंड थिंग व्हाट आई वांट टू डू हियर इज, मैंने अब चेक किया, अब मैंने चेक किया कि मेरे को जो वैल्यू सर्च करनी थी, आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च दिस वैल्यू दैट इज अ 17, बट इन मिड लोकेशन, एट मिड लोकेशन द वैल्यू विल बी 11। तो क्या हुआ, ये कहता है 11 इज लेस देन 17। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता अब आप एक ध्यान से एक लॉजिक दिमाग के अंदर लेके आइएगा, जो वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं दैट वैल्यू इज अ 17, बट द मिड लोकेशन, द वैल्यू विच इज अवेलेबल ऑन द मिडल लोकेशन इज 11। इसका मतलब है अगर ये सॉर्टेड वे में हुआ तो इससे 11 से आगे, मतलब 2 और 5 जो है वो आपको किसी भी हालत में 17 नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 11 से जो 17 है वो 11 से, जो 17 है वो 11 से ग्रेटर है। मेरे बच्चों को मेरी बात यहां तक समझ आ गई है? यस सर। वेरी गुड। वो कहता है कि इफ दिस इज द सिनेरियो देन देयर इज नो नीड टू कंसीडर दिस पोर्शन। आपको ये पोर्शन कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। और आप क्या करेंगे, काइंडली कंसंट्रेट हियर। Now this time previously the value of low is 2, now we can consider it as that value of low is equal to mid plus 1। mid plus 1 का मतलब क्या हुआ पुत्र, यहाँ पे mid की वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी, that it is to be considered as a 2 here। now it says low is equal to 2 plus 1, that should be 3। इसका मतलब अब मेरे पास क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, मैं इसको इरेज भी कर देता हूं यहां से कि क्लियर आपको अच्छे तरीके से नजर आए। अब क्या हुआ, इट सेज नाउ द वैल्यू ऑफ लो इज 3 हियर। अब मेरे बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लो इज 3 हियर बट राइट नाउ द वैल्यू ऑफ हाई इज 5 ओनली। ये दोनों 5 हैं। अब क्या हुआ, फॉर फाइंडिंग अ मिड हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी जस्ट मेंशन इट लाइक दिस, मिड इज इक्वल टू 3 + 5 फ्लोर डिवीजन 2। 3 + 5 का मतलब 8 हो गया मेरे ख्याल से। 8 floor division 2 is that is to be considered as a 4 here। अब वो क्या कहता है, फिर दोबारा उसने दिखाया, उसने बोला अब आपके पास लो की वैल्यू 3 थी, हाई की वैल्यू 5 थी, मिड जो वैल्यू आई वो क्या आ गया 20। वो क्या आ गया जी 20, द वैल्यू विल बी 20। काइंडली कंसंट्रेट। स्टेप 4 says yes this value 20 is greater than 17। कहता अब यार ये जो आप फाइंड कर रहे थे 17 था, पर जो आपके पास मिड पे आया वो 20 है, तो वो ग्रेटर है 17 से। तो इसका मतलब है अब इस लोकेशन में आपको किसी भी हालत में वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वो कहता है कि आप क्या करें, what we are going to do here, this is very important here, it says now the mid high is equal to mid minus 1। तो मेरे पास क्या हुआ, पहले मेरे पास मिड की वैल्यू थी 4, अब मैंने किया 4 - 1 that should be 3। So अब क्या हो गया, here it is we having a value low as well as high which belongs to a 3 itself, and what it makes sense in step 5 it says low is equal to 3, high is equal to 3, mid is equal to 3 + 3 floor division 2, and the mid will be 3, and actually they got that value which is available on the middle location। मेरे बच्चों को यहां तक मेरी बात जिनको क्लियर आ गई, एक बार हैंड रेस करके बता दीजिएगा प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी सर जो मिड इज इक्वल टू 3 है वो हमें इंडेक्सिंग बता रहा है ना कि कहां पर वैल्यू है। जी सर, जी सर, ठीक है सर। हाँ जी सर, ये इंडेक्सिंग ही बता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। गुरप्रीत जी अब यहां तक मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई, मुझे लगता है ना सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई है यहां तक। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं इफ यू डोंट माइंड। एक एक करके पूछता हूं जितने लोग अवेलेबल हैं। यहाँ पे
गुरप्रीत से पूछूंगा सबसे पहले। गुरप्रीत, इन केस ऑफ अ बाइनरी सर्च, वैल्यू इज ऑलवेज अवेलेबल एट डैश लोकेशन। सर मिड। मिड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सेकंड, अब ये संजना से पूछ रहा हूं। संजना, मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चे को? इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन if the value is greater than the value which we are going to search, अगर जो वैल्यू हम जो वैल्यू एरे के अंदर है वो ग्रेटर है जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, the value which is there in the list is greater than the value which we are searching for, then what we can do? We do it like this: low is equal to mid plus 1 or high is equal to mid minus 1. Sir, high is equals to mid minus 1. और अगर मेरा बेटा इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाए, So sir, low is equal to mid plus 1. Thank you very much. Thank you Sanjana ji. Thank you. God bless you. Very good. अब हम क्या करेंगे? What we are going to do here, my dear respected students, we are just begin with the content here. मेरे को लगता है फटाफट अगर मैं टाइप करूं तो शायद बात बन सकती है, बट अभी टाइम तो मुझे कम ही लग रहा है। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। This is the approach we are talking about, that iterative method. What we are going to do here, we just mention it like this as def here, and we can mention it like this, that a binary search here, and we can pass the list here along with the size. So what we can do, we just consider it as low is equal to 0, high is equal to length of data -1. मेरे को समझ आ गई होगी मुझे बच्चों को कि ये हाई हमने ऐसे क्यों लिखा है। एक और वेरिएबल लिखा फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। मैंने किया कि पहले मेरा जो फाउंड है वो फॉल्स है, और मैंने कंडीशन लिया while low लेस देन इज इक्वल टू हाई। तब तक चलता रहे जब तक लो की वैल्यू लेस देन या इज इक्वल टू क्या है, हाई। एंड नॉट फाउंड what it makes sense that mid is equal to low plus high floor division by 2. Why we do it? Because we want to find the middle location. Agar if n is equal to data at available on the middle location, then we can just found is equal to true here. We just change that particular, that found is equal to true here, but I have committed one mistake here, that I have not inserted that column here. No issues with that. Okay, and after that what we are going to do, we just mention it like this, L and if here. Ab kya karu? Next thing what we are going to do here, it says if n is greater than data which is there on the middle location is supposed to be, then this is low is equal to mid plus 1. Otherwise it says else here, it says otherwise high is equal to mid minus 1 here, and it says, मुझे लगता है सिर्फ फंक्शन होगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। if found is equal to true here, then it says I'm talking about print the value of n here, and we can found at, we can also mention it like on which location we are finding that particular, found at mid here, or we can mention it like that a position here. Yes, it's done. And now we can do it like this, else here, and we can mention it like this, print. If it's not happening that the value is not